Assalamualaikum. Assalamu alaikum class. How are you all? How are you, Khansa Bibi? Walaikum assalam. Yes, can you hear my voice? Salam Rizwan, how are you? Good morning. Walaikum assalam, Nafisa. क्या हाल है? Are you listening my voice clearly? मेरी आवाज आ रही है साफ आप लोगों को? Okay, very good. अच्छी बात है अगर आवाज आपको साफ आ रही है. Just I'm loading the PPT. Reflective writing. जी, रिफ्लेक्टिव राइटिंग की कुछ समझ भी आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है क्लास? वालेकुम अस्सलाम. जी, रिफ्लेक्टिव राइटिंग की कुछ समझ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स या नहीं आ रही है? क्या करने वाले हैं आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग में? वालेकुम सलाम. जी, जेनिफर ने कहा बस आ रही है, वो भी नींद नींद में लिख दिया जेनिफर आपने. कि जी आ ही रही है रिफ्लेक्टिव राइटिंग की समझ. यहाँ पे आ जाएंगे ना पूरी आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की. फिर आप लोग देखना, फिर आप लोगों को सारी समझ आने लगेगी. वालेकुम सलाम राबिया. गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम शनानाज. Nanas.
रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मैंने आपको कल बताया था कि क्या होती है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एन एनालिटिकल प्रैक्टिस इन विच राइटर डिस्क्राइब्स अ रियल और imaginary scene, event, interaction, passing thought, memory, or adding a personal reflection on the meaning of the atom or incident, thought, feeling, emotion or situation in his or her life। कल काफ़ी डिटेल में, गुड मॉर्निंग सारा, कल काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था, बट द correction spelling and the grammar you can more focus on it। How to write a reflective writing in university students, critical thinking and reflective thinking, I have discussed it in the previous lecture in very broad way and in very detail। I think there is no any question or ambiguity in that। Reflective writing, there was a chart about the critical thinking, reflective thinking, then reflective writing। What is reflective thinking? I have told you all aspects of reflective thinking. A possible structure for reflective writing. I think it was the last slide yesterday when I have discussed with you people the possible structure for the reflective writing, because there was a question from the students that what about the unstructured reflective writing and structured writing, careful structure writing. I have told you many things about Yes, class, I have given you the assignment about the Gibbs cycle or Gibbs reflective cycle, in fact.
Why is it so important in nursing field? Who will tell me right now in the class that Sarah, you can't listen my voice, but I am speaking, Sarah. Yes. Who told me? The now I have asked the question. Most of the students now just Google the Gibbs reflective cycle and told me about the Gibbs. Yes, what is the Gibbs? ऐसे ही करेंगे ना आप लोग। अभी जल्दी से, जब मैंने पूछा, पहले किसी ने कोई भी असाइनमेंट की नहीं होनी, अभी मैंने पूछा तो फौरन जो है आप लोग अपना करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी हम करना शुरू कर देते हैं फौरन ही। ऐसा ही है ना? Okay, why Gibbs reflective cycle good in nursing? Gibbs is another common model or reflection that is used within the health profession. Gibbs is clear and precise, allowing the description, analysis, and evaluate of the experience, helping the reflective practitioner to make sense of experiences and examine their practice. क्या कहते हैं कि Gibbs cycle? Who is a Gibbs? चलें जी, ये आपकी आज असाइनमेंट है, हम लोग ये करेंगे तो आगे चलेंगे। जल्दी से मुझे अभी सर्च करें, जो मर्जी करें, मुझे करके अभी ही बताना है आप लोगों ने कि गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या है, हु इज गिब्स। जल्दी से मुझे सारे स्टूडेंट्स जवाब देंगे तो हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि ये काम नहीं है कि टीचर ही जो है वो आपको डेली बेसिस पे आके सारी न्यू इन्फॉर्मेशन देता जाए, आप लोग बस चुप करके लगा के कानों में बैठे रहें, अपने साथ साथ काम करते रहें। कोई आपकी असाइनमेंट ही नहीं है, कोई कोई आपका होमवर्क ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं है। मैंने इतनी डिटेल में आपको 2-3 दिन से लास्ट वीक भी समझाती रही हूँ और इस वीक में भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया, और जो मैं असाइनमेंट करने के लिए देती हूँ वो सेकंड ईयर ने बिल्कुल भी नहीं करनी होती। आप लोग ये करके मुझे मैं इनबॉक्स करें, मुझे फौरन इसके मैसेजेस करें, फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, वरना मैंने आज आगे नहीं पढ़ाना आप लोगों को, बल्कि अब ऑनलाइन क्लासेस ही आप लोगों की हुआ करेंगी कि आप लोगों के टेस्ट ही ऑनलाइन हुआ करेंगे, वरना नहीं हुआ करेंगे। जल्दी से इसको करें सर्च और करके मुझे बताएं। आप लोगों को तो चाहिए था मैं एक दफा में लिखती कि व्हाट इज गिव्स, हु इज गिव्स एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव साइकिल गुड इन नर्सिंग। आप लोगों को तो चाहिए था फौरन आंसर करना शुरू कर देते, लेकिन आप लोगों ने तो ठेका उठाया कि बस हमने ऑनलाइन क्लासेस फॉर्मेलिटी के लिए पूरी करनी है। करें इसको जरा, बताएं मुझे जवाब इसका, फिर आगे चलेंगे।
जी, सारा का आया है आंसर। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल वाज डेवलप्ड बाय ग्राहम गिब्स इन 1988 to give structure to learning from experience. Feelings and thoughts about the experience, evaluate of the experience, both good and bad. Analysis to make sense of the situation, conclusion about what you learned and what you could have done differently. ठीक हो गया सारा। अब जो सारा आपने भेजा उसकी आपको समझ भी आई है या नहीं आई है मुझे बताएं पहले, ठीक है। दूसरा ये एवेल्युएशन ऑफ द एक्सपीरियंस, व्हाट इज गुड और बैड। वेरी गुड मारिया अब्दुल्ला, ठीक है। रामीन, रिफ्लेक्टिव साइकिल नर्सिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके जरिए हम एक्सपीरियंस को एनालाइज कर सकते हैं। वेरी गुड। It's our learning experience. Okay, Hadika, gives reflective cycle encourages people to think systematically about the experience they had during specific situation, event or activity. Mahkonisa gives reflective cycle was developed by Graham Gibbs in 1998. Okay, give structure from the learning experience and thought elevation experience about the good and bad. Good. Moniba, it is another way to give structure to learning from experience and describe about own thoughts and feelings about any event or experience, any good or bad. G. Jennifer, ma'am, in Gibbs reflective cycle, there are 6 elements. Very good, Jennifer. Description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, and action plan. Oh, Zabardast. Using these elements, we can write more descriptive, reflective log. Very good. ये जितनी भी चीजें आपने मुझे बताई हैं, ये जेनिफर वाला तो बिल्कुल नोट डाउन कर लें। बहुत अच्छा इसने बताया है। बाकी स्टूडेंट्स का भी अच्छा है, ठीक है। एक सारा का डिटेल में है और एक जेनिफर का डिटेल में, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से आप लोगों को क्या समझ आई है, ठीक है। जेनिफर ने जो लिखा है कि हाँ जी, देर आर 6 एलिमेंट्स, major elements in the reflective writing are description, feelings, evaluation, analysis, conclusion and action plan. Most and most important, ठीक है जी। It gives structure to learning from experience, feelings, and thoughts. Sana Nas. Experience, feelings, evaluation of the experience, both and good and bad. Analysis to make sense of situation. Conclusion about what we learned and what you could have done differently. Very good. बहुत अच्छा बताया। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोग, ये मुझे पता है आप लोगों ने गूगल किया है और वहां से आप लोगों ने लर्न किया है इसको, लेकिन ये बताएं कि कुछ आप लोगों को भी समझ आई है इसकी या नहीं समझ आई। इसको समझें और मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या समझ आई है इसकी। खुद से बताएं ना कि आप लोगों को क्या समझ आई है इसकी। अब अगर हम इसको लें कि वाई इज गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल गुड इन नर्सिंग। गिव्स इज अनदर कॉमन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज यूज विद इन द हेल्थ प्रोफेशन, ठीक है। गिब्स का जो साइकिल है, इससे जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग का अपना एक वे दिया है, वो सबसे ज्यादा नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है। गिब्स इज क्लियर एंड प्रिसाइज, अलोइंग फॉर डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ द एक्सपीरियंस, हेल्पिंग द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एग्जामिन देयर प्रैक्टिस। और वो अपनी प्रैक्टिस जो करते हैं वो इसी पर ही करते हैं। मैंने आप लोगों को जो बताया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का, रिफ्लेक्टिव राइटिंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का, आई थिंक कि जब आप लोग उसको एज अ प्रैक्टिकली यूज करेंगे, एज अ नर्स यूज करेंगे, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज करेंगे, इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग यूज करेंगे, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल इन राइटिंग एंड इन थिंकिंग एंड इन एक्शन, in all the fields. You will take the help from the Gibbs cycle, ठीक है। प्रिसाइसली तो ठीक है रामीन, हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक पूरा हमारे पास साइकिल बना हुआ है ना, जिस तरह से 6 एलिमेंट्स उसने बताए हैं, ठीक है। ओके,
ये देखें, ये असल में 6 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये होती है डिस्क्रिप्शन होती है, फीलिंग होती है, वैल्यूएशन होती है, एनालिसिस होता है, कंक्लूजन होता है और एक्शन प्लान होता है। ठीक है, ये जो है ना 6, ये मेजर, ये सारी रिफ्लेक्टिव राइटिंग करती ही इसी पे बेस है। ठीक है, इसको पढ़ें और समझें और मुझे भी समझाइए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, फीलिंग में क्या है, वैल्यूएशन में क्या है, एनालिसिस में क्या है, कंक्लूजन में क्या है, एक्शन प्लान में क्या है। जिस तरह से आप लोगों को ABCDEF याद है, अभी तक ABC सही से याद है, उसी तरह से आपको ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग और ये जो रिफ्लेक्टिव लॉग है और ये जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है, ये आप लोगों की फिंगर टिप्स भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसको याद करें, लिखें, बल्कि इसकी पिक्चर ले लें, अपने पास ही इसको सेव कर लें, या कहीं पे भी अगर आपके पास इफ यू हैव पेपर एंड पेंसिल तो आप लोग उसे लिख के इसको सारे के सारे को लिखें और याद करें अभी की अभी, क्योंकि ये मुझे चाहिए। मैं वापस आप लोग जब आएंगे, मैं इस तरह से नहीं करना कि हाँ जी वो मैंने करवाया था, हाँ जी हमें तो मैडम समझ ही नहीं आई थी, हमें हमारे सिग्नल नहीं आए थे। मैं किसी स्टूडेंट से ये नहीं सुनना चाहती। इसको करें और इसको ग्रुप में भी सेंड करें और ये सब बच्चों के फिंगर टिप्स में होना चाहिए। समझें इसको, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जूम करें, समझें कि लिखा क्या हुआ है और समझ के मुझे भी समझाएं, बल्कि आप लोगों ने मुझे समझाना है कि ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को समझाती रही हूँ पूरी रिफ्लेक्टिव राइटिंग। ये अब वो स्टेज आ गया कि आप लोगों ने मुझे समझाना है। ठीक है, शाबाश, पढ़ें इसको, समझें डिस्क्रिप्शन में क्या है, फीलिंग में क्या है, वैल्यूएशन में क्या, एनालिसिस में क्या, कंक्लूजन और एक्शन प्लान। ठीक है, शाबाश।
जी वेरी गुड। आज लगता है बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिव हुए हैं। ओके, रामीन डिस्क्रिप्शन में सिचुएशन को देखते हैं कि क्या हो रहा है, यानी कंडीशन। रामीन फीलिंग्स में ये देखते कि डिस्क्रिप्शन माय थॉट्स, फीलिंग क्या थी, बिल्कुल। गिव साइकिल allows us to learn and plan from things that either went well or we didn't go well. वेरी गुड। ठीक है, गुड। महकुनिसा डिस्क्रिप्शन जो हैपन हुआ है वो लिखना है। वेरी गुड, ठीक है महकुनिसा। एक्शन प्लान, वेरी गुड। इसका मतलब समझ आ रही है, ये भूलना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ ये भूलना नहीं है। मैंने आते ही आप लोगों से फर्स्ट डे ये पूछना है, अपने आप लोग नोट डाउन कर लें इसको। और दोबारा ये मैंने आपको मैडम एक बार दिखा दें या बता दें, मैंने वो नहीं करने देना। ये आप लोगों ने मुझे सबने ये साइकिल जो है वो बोर्ड पे बना के दिखाना है। ठीक है, करें इसको याद और अपना नोट डाउन करें इसको। शाबाश। G. In feelings, we are look back of our emotional state and relation, thoughts about the situation. जी बिल्कुल ठीक है तलहा यासीन। सही लिखा है आप लोगों ने, बिल्कुल। मतलब इट्स मीन कि आप लोगों को समझ आ गया। लास्ट लेक्चर्स आप लोगों ने जिस चीज से अटेंड किए होंगे उसको बहुत अच्छी सी इसकी समझ आ गई होगी। सारा मॉरिस, आपको एनालिसिस की समझ नहीं आई? समझने की कोशिश करें ना, मैंने सारा कुछ समझाया। सारा समझो इसको और बताओ मुझे। शाबाश, जो भी समझ आती है बताएं मुझे।